The Radiant International School wishes all my dear parents and my dear kids a very good morning. So today we are going to continue the MCQ practice from chapter number 2. We have learned how to solve the MCQs for the chapter number 1. So today we are going to do chapter number 2 division MCQs. Now we all know what are MCQs. MCQs means the multiple choice questions. Okay, the question will be given to you and the options will have the answer hidden in them. You have to read the question properly, search for the correct answer, tick on it and write the answer in the blank. Now here the chapter number 2 starts. The first question is, dash is the sign for division. You all know what is the sign for division? This is the sign plus. This is multiplication sign. And this is the division sign. Yes or no? So we will put a tick and write the answer. This is the sign for division. Now the second question. 14 divided by 2 is equal to 7 is a dash. Multiplication fact, division fact or addition fact. Now, which is the sign inside the numerics? Division sign. Yes or no? So, this is a division fact and not a multiplication fact. अगर ये multiplication fact होता तो वहां पे multiplication की sign होती और addition fact होता तो वहां पे plus की sign होती. Yes or no? But this is a division fact. Now look at the third question carefully. Here can you see the number line is having 15 numerics written on the line. Yes or no? और उसमें से number 3 को subtract किया है. Now count how many times 3 is subtracted from 15. See, यहाँ पे देखो arrow कहाँ जा रहा है? Arrow is going backward. Yes or no? पीछे जा रहा है. अगर हम आगे जाते हुए एरो को देखते तो हम बोलते कि यहाँ पे 3 को प्लस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एरो पीछे जा रहा है, आगे नहीं. दैट मीन्स नंबर 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15. ओके, 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया है कितनी बार? 1, 2, 3, 4 and 5. Now let us see the question. What is the question? Now look here. 15 divided by 3 is equal to 5. वो तो correct है. This shows that division is dash. Repeated addition, repeated multiplication और repeated subtraction. जैसे कि हमने देखा नंबर लाइन में 15 में से 3 को subtract किया था. Yes or no? पीछे गए थे ना हम. So that means division is repeated subtraction. Now the question number 4. 32 divided by 8 is equal to 4. In the given division fact, 4 is dash. यहाँ पे जो 4 है वो क्या है? You have to recall the different terms used for division. What is this? This is the dividend. This number 8 is the divisor. And number 4 is the quotient. So the correct answer is quotient. Question number 5. 14 divided by 2 is equal to 2. In the given division fact, 7 number is the 7 क्या है? मैंने आपको बताया है ना कि डिवीजन की साइन के लेफ्ट साइड वाले नंबर को बोलते हैं डिविडेंड. जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है. और यहाँ पे डिवीजन के साइन के राइट हैंड वाले नंबर को बोलते हैं डिवाइजर, जो यहाँ पे होता है और जिसकी मदद से हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं. अंडरस्टूड? एंड द नंबर एट द टॉप इज कॉल्ड द quotient. Now 7
तो राइट हैंड पे है ना, डिवीजन साइन के राइट हैंड पे. सो द नंबर 7 इज डिवाइजर. तो द आंसर इज डिवाइजर. ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 6. 10 divided by 2 is equal to 5. In the given division fact, number 10 is the dash. Now your again see वही पूछा है. डिविजन साइन के लेफ्ट हैंड वाले नंबर को क्या बोलते हैं? जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है डिवाइजर की मदद से, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड. और डिविडेंड हमेशा बड़ा होता है डिवाइजर से. अंडरस्टूड? सो द नंबर 10 इज द डिविडेंड. डिवाइजर क्वोशिएंट नहीं है, वो है डिविडेंड. अंडरस्टूड? नाउ द 7th क्वेश्चन. व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो क्वोशिएंट इज ऑलवेज, टेल मी, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर मतलब ब्रैकेट के अंदर 0. अगर यहां पे 10 हो कि फिर 9 हो, कोई भी नंबर होने दो, लेकिन 0 को अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 10 से तो हमें 0 ही मल्टीप्लाई करेगा ना, करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 को हम डिवाइड कर ही नहीं सकते. सो द आंसर इज 0. ओके, नाउ हियर द 18th क्वेश्चन. 16 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5. ओके, नाउ यहाँ पे देखो सम दिया है. 16 को 3 से डिवाइड किया है. 16 से नजदीक वाला नंबर क्या है 3 के टेबल में? 3 5s are 15. और यहाँ पे हमें मिलता है नंबर 1. ओके, नाउ सी योर नंबर 1 मिला. व्हाट इज द रिमाइंडर? अभी क्वोशिएंट तो हमें ऊपर मिलता है, रिमाइंडर क्या होता है? जो यहाँ पे मिलता है. सो दिस इज द रिमाइंडर. सो द नंबर, सी, r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर. 27 divided by 9 is equal to 3. 27 divided by 9. 9 3s are 27. Okay, 9 के टेबल में 27 आता है ना, तो 9 3s are 27. 0 0 मिला हमें. Now you have to write what is the divisor. अभी इसमें से देख के भी पता चलना चाहिए हमें कि डिवाइजर कौन सा है. I told you no, डिविजन साइन के राइट हैंड वाले नंबर को बोलते हैं डिवाइजर और लेफ्ट हैंड वाले नंबर को बोलते हैं डिविडेंड. और यहां पे इज इक्वल टू के बाद होता है क्वोशिएंट. अंडरस्टूड? और यहां पे जो हमें नीचे मिलता है वो होता है रिमाइंडर. अंडरस्टूड? तो हमें यहां पे क्या पूछा है? डिवाइजर पूछा है. तो डिवाइजर क्या है? ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर होता है, दिस इज द डिवाइजर. ओके, डिवाइजर इज ऑलवेज रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट. डिविडेंड इज ऑलवेज रिटन इनसाइड दिस ब्रैकेट. दिस इज द ब्रैकेट ऑफ डिविजन. ओके, ये ब्रैकेट के अंदर हमेशा डिविडेंड लिखा जाता है और ये डिवाइजर हमेशा बाहर लिखा जाता है. सो व्हाट इज द डिवाइजर? नंबर 9. ओके, 3 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, क्योंकि 27 तो डिविडेंड है, 3 क्वोशिएंट है, 9 इज द डिवाइजर. क्वेश्चन नंबर 10. 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4. 24 divided by 6 gives you 4 because 6 4s are 24. Remainder is 0. You have to find the dividend. What is the dividend? Dividend is the number inside the bracket. ये ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को बोलते हैं डिविडेंड. सो नंबर 24 is the dividend. Now here 11th question. The number by which another number is divided is called dash. इसका मतलब क्या है? जिस नंबर से हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं उस नंबर को क्या बोलते हैं? थिंक, उस नंबर को क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या होता है? जिसकी मदद से हम ये नंबर को डिवाइड करते हैं. हम किस नंबर को डिवाइड करते हैं? डिविडेंड को डिवाइड करते हैं. लेकिन डिविडेंड को किसकी मदद से डिवाइड करते हैं हम?
The number by which the number is divided, another number is divided, is called divisor. तो यहां पे आएगा divisor, क्योंकि हम डिवाइजर की मदद से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं. तो आपका आंसर होगा डिवाइजर. See here, the options are remainder, divisor, quotient. The answer is divisor. 21 divided by 3 is equal to dash. अभी यहाँ पे हमें क्वोशंट ढूंढना है, लेकिन हम कौन से टेबल को पढ़ेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा. 3 के टेबल में 21 को ढूंढना है. 3 7s are 21. So the answer is 7. 13th sum. Solve and write the quotient. अभी क्वोशंट मतलब यहाँ पे ऊपर जो हमें ढूंढना है उससे हम बोलते हैं क्वोशंट. तो हम 99 को डिवाइड करेंगे 3 की मदद से. 3 की टेबल में 9 आता है, हम एक एक नंबर से आगे बढ़ेंगे. 3 1s are 3, 3 3s are 9. अंडरस्टूड. 9 minus 9 0. अभी ये 9 को हमें नीचे लेना है, तो यहाँ पे 9 लिखा. अभी वापस से 3 के टेबल में 9 ढूंढो. 3 3s are 9. आंसर इज 0. नाउ क्वोशंट क्या मिला? दिस इज द क्वोशंट. क्वोशंट इज नंबर 33. 11 भी नहीं, 9 भी नहीं. आपको जो आंसर राइट मिला ना ऊपर, उसे टिक करना है. अंडरस्टूड. 14th क्वेश्चन. सॉल्व एंड राइट द रिमाइंडर. अभी रिमाइंडर क्या होता है? नीचे वाला आंसर. तो हमें पहले इस सम को सॉल्व करना पड़ेगा. 30 से नजदीक वाला नंबर क्या होता है 7 के टेबल में? थिंक. 7 के टेबल को पढ़ना है माइंड में. 7 1s are 7. 7 के टेबल को पढ़ो. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35. अभी 30, 28 और 35 के बीच में आता है. तो लेकिन हम 30 से बड़ा नंबर यूज करेंगे कि छोटा? स्मॉलर नंबर. Why? Because we cannot subtract the greater number from the smaller number. So we are going to use 28. 7 4s are 28. This will become 10. This will become 2. 10 minus 8. 8, 9, 10. Okay. So the answer will be 2 and 2 minus 2 is 0. What is the remainder? Think. The answer that is left is called the remainder. The remainder is number 2. 0 नहीं मिला है हमें, 1 भी नहीं मिला. So 0, 2 is the remainder. The 15th one. 0 divided by 9 gives you. अभी देखो डिविडेंड अंदर है, डिवाइजर 9 है. अभी 9 के टेबल में 0 तो आने से रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9 0s are 0. तो आपको क्या मिलेगा आंसर यहाँ पे? 0. अंडरस्टूड. वापस से देखो यहाँ पे 8 को अंदर लिखना है. डिविडेंड इज 8, डिवाइजर इज 0. अभी 0 का टेबल मतलब क्या? 0 ही होता है ना सब कुछ. 0 8s are भी 0, 0 0s are 0. हमें 8 तो मिलने नहीं वाला है. यस और नो? अंडरस्टूड. सो द आंसर विल बी 0. 0 का टेबल में सब कुछ 0 होता है. 17. 11 divided by 11. अभी ध्यान से देखो. Whenever a number is divided by itself, the answer is always 1. सेम नंबर 11 के टेबल में 11 को ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा? 11 1s are 11. अंडरस्टूड. 4 divided by 1. अभी 4 को 1 के टेबल में ढूंढना है, तो 1 के टेबल में 4 कभी आएगा? 1 4s are 4. Yes or no? So the answer is 4. 19th. When the given numbers cannot be divided equally, some number is left over and it is called. अभी ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले. जब भी हम कोई नंबर को डिवाइड करने जाते हैं, लेकिन
आफ्टर डिविजन देर आर सम नंबर्स लेफ्ट, नीचे बच जाते हैं यहाँ पे, और उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर पाते, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? उस नंबर को हम बोलते हैं रिमाइंडर, बच जाता है वो, लेफ्ट ओवर। देखो, when the given numbers cannot be divided equally, some numbers is left over and it is called remainder. Understood? Choose the multiplication fact which has only one division fact. अभी वन डिविजन फैक्ट किसका मिलेगा? जिसका दोनों नंबर सेम हो। 8 into 8 is equal to 16। अगर हम इसका डिविजन फैक्ट्स बनाने जाएंगे तो यहाँ पे देखो 16 बड़ा नंबर है, उसको पहले लिखो, डिविजन की साइन डालो। अगेन पहले हम 8 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे, तो अगेन दिस 8 यहाँ पे, तो हमें तो दोनों सेम ही मिला ना। लेकिन यहाँ पे देखो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4 एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। ये दोनों डिवीजन फैक्ट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन फैक्ट है वो सेम है, तो हमें एक ही मिलेगा डिवीजन फैक्ट। सो व्हेन both the numbers which are multiplied are same, you get only one division fact. So the correct answer is this. ये दोनों का दो डिविजन फैक्ट मिलेगा, because the two numbers which are being multiplied are different. Understood? Now here, identify the divisor from the following. Divisor क्या होता है? The number which is being used for dividing this number. Okay, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है? नंबर 6. Identify the dividend from the following. Dividend is the number which is to be divided. तो कौन सा नंबर डिवाइड करना है? 20 को, तो 20 is the dividend. Dividend divided by divisor is equal to dash. डिविडेंड को हम डिवाइजर की मदद से जब भी डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? ऊपर देखो, यहाँ पे होता है डिविडेंड, जिसको हम डिवाइजर की मदद से डिवाइड करते हैं, तभी हमें यहाँ पे ऊपर जो नंबर मिलता है वो क्या होता है? कोशेंट। अंडरस्टूड? देखो आपको ऑप्शंस बताती हूँ। सो रिमाइंडर, डिवाइजर, कोशेंट। द कोशेंट इज द राइट आंसर। 24th क्वेश्चन, 2 into 4 is equal to 8। अभी इसके दो डिविजन फैक्ट बनेंगे। एक है 8 divided by 4 gives you 2। दूसरा है 8 divided by 2 will give you what? Think. 4. The answer is 4. Okay. Now again, 7 into 8 is equal to 56। इसके भी दो डिविजन फैक्ट बनेंगे। तो when 56 is divided by 7 will give you 8। And when 56 is divided by dash gives you 7। यहाँ पे आंसर मिलेगा 8। Understood? So in this way, you have to keep reading the question until and unless you understand what is being asked. Then search for the correct answer, tick on it and fill the blanks on the question. I hope this video helps you to solve all your queries. Stay home, stay safe.